are focusing on the first chapter, and in that we will study a small idea of vapor pressure. It's not there, but still, before going towards Raoult's laws and other concepts, we have to focus on the vapor pressure. Suppose I took this container and this is filled with water and I am heating it up. You know that it will form the vapors, that you know. But if I close this particular container and then I heat it, then definitely water has the tendency to form vapors, so it will forms the vapors. But these vapors will strike and it will reach to the container and it will come down, right? So the point is that there is the case it will strike the particle will strike to this corner, this corner, this corner. So after that, losing its energy, they will come down. So this will happen in the closed container. So what is the case that they go for evaporation, and after striking to the walls of the container, they will come back down. Okay, so you see that over here initially the rate of evaporation was taking place when you were heating up, and after striking to the walls of the container, it come back. Then you see the rate of condensation also takes place. Means the point is that this particular rate of condensation and rate of evaporation in this container is equal to each other. भाई जितना rate of evaporation है, the same will be equal to your rate of condensation. Now suppose in the same container I applied over here a vacuum pump, and I also put a nanometer just to measure the pressure over here. Okay, so the stage will come at equilibrium stage. Basically this situation will be happen when it will happen at the equilibrium stage, when the rate of evaporation will become equal to the rate of condensation. And the point is that you will have at this stage the vapors of the liquid exert a definite pressure, because देखो ये स्ट्राइक करेंगे ना, तो ये भी तो अपना एक जो लिक्विड है उसके भी तो आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, डेफिनेट प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं. सो दिस प्रेशर इज़ योर जो प्रेशर ये लोग भी तो एग्जर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो भाई वॉल्स पे एक प्रेशर ही तो एग्जैक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वापस आ जा रहे हैं. तो दैट प्रेशर इज़ नोन एज योर क्या कहते हो आप, वेपर pressure, which has different names like equilibrium, vapor pressure, even your saturation vapor pressure. This thing you have to keep it in mind. Now this pressure that has been exerted by the vapor molecules at the surface of the liquid, even at the भाई क्यों इन्हें वापस आ रहे हैं, तो ये लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर नहीं जनरेट करेंगे. ठीक है, तो उस कंडीशन में ही तो हमने देखा था रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज योर वेपर प्रेशर. तो उसके अलग अलग नाम भी हमने लिखा था फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड. अब ये जो लिक्विड के उसके लिए वो प्रेशर जो है वो एग्जैक्ट कर रहा है. अब वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नेचर ऑफ द लिक्विड एंड सेकेंड इज़ योर टेम्परेचर. Now you tell me, if this particular liquid has a tendency that it is volatile in nature, so you know a liquid that is volatile in nature, they will generate more vapors. तो उस केस में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. अब सेम कंडीशन अगर आप इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें तो और जल्दी ये ना वेपर्स आपके जनरेट अप होंगे, है ना. तो ये कंडीशन होती है आपकी वेपर प्रेशर की. अब एक पॉइंट आता है वेपर प्रेशर पे कि जो हमने इसमें एक चीज़ नोटिस करी कि नेचर ऑफ द लिक्विड, जिसे आपने देखा कि कोई लिक्विड होते हैं जिस उसमें एक और इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिक्विड जो है वो पोजेस करता है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर लिक्विड्स के पास स्ट्रॉन्ग, जैसे अभी हमने वॉलेटाइल वाली कंडीशन बताई, अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि अगर बाई चांस पर्टिकुलर लिक्विड में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, ठीक है, उस कंडीशन में वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो आपका लो हो जाएगा एट अ गिवन टेम्परेचर, क्योंकि भाई स्ट्रॉन्ग है ना. तो आपको इसमें क्या भाई ज़्यादा वेपर प्रेशर थोड़ी लगेगा, वो इतनी ईजिली थोड़ी कि वो लिक्विड जो है वो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए.
ठीक है। तो एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर इसमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, उस कंडीशन में वेपर प्रेशर आपका, वीपी लिख रही हूँ मैं, वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। प्लीज़ सी दैट इफ़ इट इज़ दिस इज़ लो, अगर इनके बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस लो है तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर आपका हाई होगा। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू दिस। नाउ द सेकेंड पॉइंट अराइजेस दैट सपोज इफ़ आई ऐड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू द सॉल्वेंट। ठीक है, अब क्या होगा अगर इफ़ आई ऐड अ नॉन volatile solute to a solvent। ठीक है, अब सपोज़ करो ये कंटेनर है, अभी जैसे तुमने लिक्विड जब उबाला तो उसके सरफेस पे सारे जो ये मॉलिक्यूल्स थे वो सब किसके थे, लिक्विड के थे। ठीक है, सब क्या थे, लिक्विड के थे, और जो हमने पीछे रखा हुआ था कि वो वॉलेटाइल इन नेचर है। अब सपोज़ करो तुमने इसी में ही एक सॉल्यूट डाल दिया, एंड दैट सॉल्यूट्स नेचर इज़ नॉन वॉलेटाइल, मीन इट्स जैसे NaCl नॉन वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तो आपने वो डाला, अब इसकी जो लिक्विड का सरफेस है उसमें क्या हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल्स के हो जाएंगे आपके NaCl के हो जाएंगे, मतलब जो नॉन वॉलेटाइल आपका सॉल्यूट है वो हो जाएगा। अब देखो वेपर्स, यानी इनने उस जगह में घेराबंदी कर दी है, अब उस जगह को ब्लॉक कर दिया। अब वेपर्स, अभी तक कितने सारे वेपर्स खाली, जब आप वाटर ले रहे थे तो कितने सारे वेपर्स निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यू आर एडिंग, देन द इट इज़ दिस पर्टिकुलर सरफेस इज़ बीन ब्लॉक बिकॉज ऑफ दिस नॉन वॉलेटाइल। भाई यहाँ तक तो आ जाएंगे लेकिन इवेपोरेट नहीं हो पाएंगे। तो अब इनके लिए जगह कितनी बची, सपोज करो 1 2 3 4 5 6 स्पेस मिली, तो क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, लो हो जाएगा। सो व्हेन यू आर एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू इट, सो दैट कंडीशन द वेपर प्रेशर इज लोअर्ड। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। सो लेट्स फोकस ऑन फ्यू थिंग्स। अब हम एक लॉ पे, इसी चीज़ को, इसी आइडिया को लेके हम लोग राउड्स लॉ पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन द राउड्स लॉ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लो, डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझ लो वर्ड को, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम से, जैसे यहाँ पे आपने जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, जो पीछे वाली कंडीशन में जो हमने बताया था, अच्छा इसी में ही हमने करा था जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम था। ठीक है, यहाँ पे एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, यहाँ से आपने वाटर एक ओपन कर लिया और यहीं से एक आउटलेट बना दी, मतलब एक इनलेट है और एक आउटलेट है। ठीक है, तो जिस स्पीड से, जिस प्रेशर से वाटर इन हो रहा है उसी स्पीड से वाटर बाहर निकलेगा। तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि ये एक प्रॉपर डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर चीज़ में मेंटेन, जैसे यहाँ पे कंडीशन है, जितना रेट ऑफ इवेपोरेशन जिस एक्सटेंट से होगा उतने ही रेट ऑफ कंडेंसेशन होगा, कमी किसी में नहीं है, दोनों में बराबर इक्वली है। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, वेपर इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश इन दिस केस व्हेन द इट इज क्लोज कंटेनर एंड द एयर फ्रॉम द कंटेनर इज़ नॉट बीइंग मूव्ड आउट। ठीक है, तो ये कंडीशन आपने, क्योंकि आप वैक्यूम जनरेट कर रहे हैं तो एयर इसमें कंटेनर में जाए भी नहीं और जितनी है उससे बाहर निकले भी नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। तो आई थिंक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स फोकस ऑन द राउड्स लॉ. Raoult's law was given by F. Raoults, and he was a French chemist, and basically he put most of the studies of vapor pressure on the large number of binary solution. Binary solution समझते हो ना, जहाँ पे कोई कंटेनर है या दो चीज़ें होंगी, टू चीज़ें, या तो दोनों सॉल्वेंट हो सकते हैं या हो सकता है एक सॉल्वेंट हो, एक ना आपका सॉल्यूट हो, है ना, तो वो कंडीशन, बाइनरी मीन्स टू। सो ही पुट इन दैट कंडीशंस। तो लेट्स फोकस ऑन हिट्स आइडिया। तो क्या उन्हें, जैसे उन्हें पहला उनका कंडीशन थी वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉल्यूट्स कंडीशन, और पर्टिकुलर दिस थिंग बेसिकली डेरिवेशन इज बी नॉट आस्क्ड, बट देन टू वी हैव टू फोकस ऑन फ्यू थिंग्स ओवर इट। सो लेट्स पॉइंट गोज टू दिस पार्ट कि हमने एक वॉलेटाइल लिक्विड लिया रखा है और उसमें हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। ठीक है, so I'm making the diagram. Now suppose I take a container, in this I took two volatile liquids A and B.
सो डेफिनेटली बोथ विल फॉर्म वेपर्स, यू नो इट, है ना। तो अब यहाँ पे जो ऊपर लेयर में ए का भी रहेगा एंड सपोज करो बी का भी रहेगा, और लेकिन ये दोनों कंडीशंस क्या है, बोथ आर वॉलेटाइल, सो दे कैन ईजिली फॉर्म द वेपर्स एंड वेपर प्रेशर विल बी जनरेटेड। सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन व्हेन द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन बनेगा ए प्लस बी का, उसमें दोनों ही कौन है, बोथ आर वॉलेटाइल इन नेचर, तो बोथ विल ईजिली फॉर्म द वेपर प्रेशर। तो दैट पर्टिकुलर कंडीशन, व्हाट इज द केस दैट कम्स अक्रॉस, दैट वेपर प्रेशर ऑफ द component is been always equal to the, जैसे हमने माना है कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर, एक लिए हम कंसिडर करके ले रहे हैं, आई लेट यू नो हाउ वी कैन डू। सो दैट पर्टिकुलर पॉइंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द component एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, एंड एक जनरल आइडिया, इट्स मोल इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन एज वेल एज द वेपर प्रेशर। ठीक है, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए या वेपर प्रेशर को पहले लिख लीजिए और बाद में आप मोल फ्रैक्शन लिख लीजिए। तो ये एक आइडिया है कि ये बेसिकली आपका वेपर प्रेशर ऑफ component of a component, and this is the mole fraction that has been there, and this is what the vapor pressure that has been you can say कह सकते हो of pure states, vapor pressure of that component in the pure state. सो दिस इज़ दैन आइडिया दैट ही केम अक्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा एक सोल्यूशन है, सपोज करो अगर उसका हम इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर देखेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी हमें करना पड़ेगा। मीन्स हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ हम बी करेंगे। अब हमने इंडिविजुअल वेपर प्रेशर हमने निकाला, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट मीन वेपर प्रेशर ऑफ ए अगर हम निकालेंगे तो हम यही थ्योरी अप्लाई करेंगे, क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट and its mole fraction. Similarly with the B also the same part you will applied. Now इनने दो सॉल्वेंट्स को यूज़ करा, ज़रूरी नहीं है दो हो, तीन भी हो सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल हम ये एडिशनल बता रहे हैं आपको, अगर एडिशनल आप देखें PCB हो जाए इसमें तो उसका भी क्या हो जाएगा, यू जस्ट ऐड ऑन each and everything. So what you got this formula, solution is made out of these two components, so you will adding up these components parts. So PS आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। अब सपोज करो आपके पास ये एडिशनल और होता तो आप क्या कर देते, PS में PA प्लस PB प्लस PC, ज़रूरी थोड़ी तीन हो चार हो, तो ये आप न्यूमेरिकल के लिए यू रिमेंबर दिस पार्ट कि यू कैन ऐड द कंपोनेंट्स। मोस्टली हम दो ही देते हैं, लेकिन ये अब ये कब लॉ एप्लीकेबल है, ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन बोथ द सॉल्वेंट्स आर मिसिबल इन ईच अदर। यहाँ पे दोनों ही लिक्विड्स हैं A एंड B एंड बोथ आर मिसिबल, राइट, बोथ आर मिसिबल टू ईच अदर, दिस इज़ द केस। अब नाउ राउट्स ने एक और कॉन्सेप्ट अप्लाई करा जब उसने कहा कि चलो यार अब हम ऐसा करते हैं, सॉल्वेंट लें और साथ में सॉल्यूट लें। The solvent should be volatile in nature, no doubts, but your solute should be a non-volatile. This part he took कि non-volatile। अब यानी जो आपका PS, अब भाई अब कंटेनर जो है, क्योंकि देखो अंडरस्टैंड करो यहाँ पे अब जो है सपोज़ करो ए बी यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन बाई चांस जो B है तुम्हारा, जो कि इफ़ यू एज्यूम इट एज अ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ठीक है, तो ये पार्ट पूरा बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ़र्क हो जाएगा, है ना। तो लेट्स सी आप किसको कर रहे हो, सपोज़ करो हमने ए को है ना वो रख लिया क्या कहते हैं उसे, नॉन वॉलेटाइल। सपोज़ करो ए मेरा नॉन वॉलेटाइल है और बी मेरा वॉलेटाइल है, तो नो इश्यूज़ ऑफ इट। तो भाई सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन तो वही है, आज भी PA प्लस PB से रिलेट अप करेगा, तो वो तो आपका आज भी यही है कि PS इज इक्वल्स टू PA प्लस PB। बट द पॉइंट इज़ दैट आज भी आप वही चीज़ बनाओगे। कैसे बनाओगे, देखो PS जो PA आप अब लिखोगे तो P नॉट A एक्स A नॉट A, PB जो हो जाएगा P नॉट B एक्स B नॉट, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ दैट दिस इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो नॉन वॉलेटाइल होने के वजह से बेसिकली जो वेपर प्रेशर है, भाई ये तो वेपर बनाएगा ही नहीं ना,
पी ए जो है वो वेपर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। वो तो वेपर मैंने पहले ही बताया था, यहाँ तक पहुँचेगा लेकिन वो वेपर नहीं बनाएंगे। तो यानी ये जो कंडीशन है आपकी, ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। दिस विल बी ज़ीरो फॉर यू ऑल। तो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुट इट ओवर। अब जब ज़ीरो से तुम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो पी ए विल कम अक्रॉस टू ज़ीरो। तो यहाँ आपने जो वैल्यू आएगी आपकी पी ए क्या है, ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये आपका वेपर प्रेशर बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, पी एस ज़ीरो प्लस पी नॉट बी, ये कंडीशन आपकी आ जाएगी। अब आप इसको और इलेबरेट कर लीजिए, राइट। नाउ यू कैन चेंज दिस फॉर्मूला, दिस एक्स बी, इफ़ यू रिमेंबर द मोल कॉन्सेप्ट वन, दिस कैन बी रिटन एज, अगर तुम्हें याद हो, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू वन। तो अगर आपको एक्स बी की वैल्यू निकालनी तो वन माइनस एक्स ए आप लिख देते थे, है ना। तो आप इसकी वैल्यू ये लिख सकते हैं, दिस विल। तो यू कैन पुट इट ओवर या पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट बी और वन माइनस एक्स ए। तो ये क्या हो जाएगा, पी एस पी दिस थिंग माइनस, यू गेट इट दिस वे। तो अब अगर मोल कॉन्सेप्ट आपको निकालना है ए का, तो क्या हो गया आपका, दिस विल बी इक्वल टू, कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, पी बी को आप इधर ही रखें, उसको इधर ले आएँ, कोई इश्यूज़ नहीं है। अब पॉइंट ये है कि तुम ये कह सकते हो कि भाई ये पी ए से नेगेटिव है ना, इसको आप लेके आए हो यहाँ पर, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अब तुम ये सोच सकते हो मैम ये हम यहाँ लाएँ, इसको वहाँ ले जाते हैं नेगेटिव साइन में, है ना। तो अगर तुम यहाँ तुम खुद स्मार्ट इनफ हो, अगर इसको नेगेटिव लाओगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव चेंज होगा, तो ऑटोमेटिकली चार्जेस जो है चेंज हो जाएंगे, यही आपका निकल के आएगा। तो यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द केस व्हेन यू आर टेकिंग अ वॉलेटाइल लिक्विड एंड अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो ये भी राउट्स लॉ का एक नया स्टैंडर्ड था, और उसमें आपने क्या, यहाँ से आपको क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग आ रहा है। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका, दैट कम अक्रॉस द रिलेटिव lowering of vapor pressure of the solution at a particular temperature is equal to, किसके मोल फ्रैक्शन के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल, फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखा आपने, तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपका यहाँ पे आ गया है। नाउ विल फोकस ऑन द आइडियल सॉल्यूशंस। बेसिकली एन आइडियल सॉल्यूशन इज द सॉल्यूशन विच फॉलोज द राउट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द टू कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। जब आप दो कॉम्पोनेंट्स को मिलाएंगे तो उनकी वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ऑन मिक्सिंग द टू कॉम्पोनेंट्स, दिस थिंग इज़ बीन देयर इज़ नो चेंज इन द इंथैल्पी ऑल्सो। तो जो इंथैल्पी मिक्सिंग है आपका, जैसे ये डेल्टा वॉल्यूम मिक्सड है आपका, वो भी ज़ीरो आ रहा है। जो इंथैल्पी चेंज आ रहा है ऑन मिक्सिंग इज़, दैट इज़ ऑल्सो, दिस इज़ व्हाट, इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग is also ज़ीरो, that is coming, it's not change, there is no। तो एक परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन होता है जो ये बनता है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ ये भी अभी हम बता रहे हैं, आइडेंटिकल आपका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर ऑल्सो देयर, है ना, क्योंकि भाई मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर, तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो दोनों ही सोल्यूशन की जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये याद रखना है कि उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों में सेम लगे, एक एक्सटेंट पे लगे। देखो एक्चुअली आइडियल, जैसे मैंने तुम्हें वर्ड कहा कि एन परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन कैन बी मेड इन दिस वे, बट प्रैक्टिकली एक परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन होता ही नहीं है। Theoretically we can say that, but practically it is not at all possible for several solutions and varied dilutions, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें certain examples comes like अब जैसे नॉर्मल हेक्सेन को और आप नॉर्मल हेप्टेन्स को अगर आप मिला लें तो ये भी एक प्रॉपर आइडियल सोल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। बेंजीन है, बेंजीन में टॉल्वीन आप मिला लें, तो आई हैव गिवन यू 2 एग्जांपल्स।
दिस वे देर आर प्लेंटी ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. सो बेसिकली होगा क्या कि जो आपने अपना सोल्यूशन का भी बनाया था, ये सोल्यूशन का यही कंडीशन करी है आपने, आप बस इसको लेके चलिए. सेम फॉर्मूला यू विल अप्लाइड एज अबव, you have done it beforehand, so no issues of it. So this way you can make an your point, and this way you can have different formulas also. अभी आप जैसे आपने इसकी जगह x की जगह आपने 1 माइनस एक्स भी लिख दिया है, आप एक सा बना रहे हैं ना, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आइडियल सोल्यूशन है राउल्स लॉ फॉलो ईजिली कर लेते हैं, और जब आप इनकी ग्राफ की प्लॉटिंग करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है. ये सब चीज़ें यू हैव टू फोकस ऑन योर माइंड, सो यू कैन चेंज इट इन दिस मैनर. भाई क्योंकि इनके नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी आपको सेम ही पड़ेंगे, तो एक ही डायमीटर्स में आपको लाना पड़ेगा दोनों को. या तो इसको बना लीजिए 1 माइनस एक्स भी, ऐसे बना लीजिए, इट इज़ योर चॉइस. नो नेसेसरी के इट्स नॉट नेसेसरी आई एम डूइंग दिस, यू कैन चेंज इट हियर ऑल्सो. तो बेसिकली ओवरऑल जो तुम्हारा निकल के आ जाएगा वो इस तरह से आएगा. यू कैन सॉल्व इट, right. So when these twos are this and this are constant at a particular temperature, and you can apply this y is equals to mx plus c फॉर्म में आप एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर सकते हैं बिटवीन p और अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ a या मोल फ्रैक्शन ऑफ b, तो स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है. दिस थिंग इज़ द आइडियल सोल्यूशन. नाउ नॉन आइडियल सोल्यूशन इज़ जस्ट अ रिवर्स ऑफ दिस थिंग आइडियल सोल्यूशंस. ये बिल्कुल उल्टा पुल्टा काम करेंगे. दे विल नॉट फॉलो राउल्स लॉ. ठीक है. इसमें एक्चुअली क्या होगा ना कि दोनों कंडीशन हो सकती है. बेसिकली हम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशंस का देख रहे हैं. नॉन आइडियल सोल्यूशन आपकी पॉजिटिव डेविएशंस एज वेल एज नेगेटिव, मतलब वो देखो, या तो सपोज करो जैसे कोई एक पॉइंट है कि आपके पास राउल्स लॉ के लिए आपने कोई ग्राफ प्लॉट करा है ना, तो आपने जैसे ग्राफ प्लॉट करा और राउल्स लॉ का अगर हम कंडीशन देख रहे हैं कि हमको एक ऐसी लाइन मिल रही है, तो या तो वो राउल्स लॉ फॉलो कर ले, आइडियल सोल्यूशन के उसी को फॉलो अप कर लेंगे. पर ये फॉलो नहीं करेंगे, या तो ये उससे ऊपर चले जाएंगे या उससे नीचे चले जाएंगे. तो ऊपर चले गए उस वैल्यू से तो वो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, नीचे चले गए उसकी वैल्यू से तो वो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा. तो यहाँ दोनों कंडीशन है, नॉट फॉलो राउल्स लॉ, है ना. अब हम पहली इसमें कंडीशन देख रहे हैं कि व्हेन वी आर फॉलोइंग द पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, पॉजिटिव डेविएशंस ऑफ राउल्स लॉ, फ्रॉम राउल्स लॉ हम देखते हैं. तो ये पहले तो हम इसमें कंडीशन से देखें कौन से सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे. भाई ये राउल्स लॉ तो फॉलो कर ही नहीं रहे हैं. ठीक है. देन इट्स वेपर प्रेशर इज़, अब कंडीशन क्या है, वेपर प्रेशर इज़ हायर देन दैट एग्जिबिटेड बाय राउल्स लॉ. ठीक है. द लिक्विड पेयर शोइंग पॉजिटिव डेविएशंस. ठीक है. प्लस अब जैसे सपोज़ करो अब राउल्स लॉ है, तो जैसे ए और बी मॉलिकुलर इंटरेक्शन हो रहा है. भाई आपका कोई सोल्यूशन है जिसमें ए और बी दिया रखा है. ठीक है, आपने मिलाया, तो जो भाई एक तो ए और बी के बीच में इंटरेक्शन होगा, मॉलिकुलर इंटरेक्शन. ठीक है. एक क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन के दो फोर्सेस. दूसरा क्या है, ए और ए के बीच में होगा. और क्या हो सकता है, बी के बीच में आपस में इंटरेक्शन है. तो ये जो इंटरेक्शंस हैं कॉमन नहीं होते हैं, ये फ़र्क हो जाते हैं. कैसे, जो ए और बी का मॉलिकुलर इंटरेक्शन फोर्सेस हैं दैट इज़ लोअर देन इंटरेक्शन आइदर दिस और दिस. ये कंडीशन, तो क्या हो जाएगा, ये राउल्स लॉ के ऑपोजिट हो गया. भाई इसका इंटरेक्शन क्या हो गया, लो हो गया कंपैरिजन टू इंटरेक्शन दैट इज़ टेकिंग प्लेस बिटवीन द ए मॉलिक्यूल्स और बी मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो ये कंडीशन आपकी हो जाती है. अब इसमें भी कुछ एग्जांपल्स है, मैं 2-3 एग्जांपल लिख देती हूँ. जैसे वाटर और इथेनॉल इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर इट. देन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस बेंजीन is the best example for it, for this positive deviation. Now this is the positive deviation graph which you can see. Now there are certain points which you have to focus on the non-ideal solutions showing the positive deviation. This is positive, this is positive, this is the different values you can see. Now we'll focus on non-ideal solutions showing negative deviations from the Raoult's law. We are taking the containers A and B. Now again you know that A and B interaction, molecular interaction forces is there.
you A will also show that B molecules will also show. उधर क्या था, ये लो हो गया था. यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेक्शन जो इन लोग का होगा A और B का, वो ग्रेटर होता है कंपैरिजन टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंटरेक्शंस. राइट, दिस थिंग यू हैव टू फोकस इन माइंड, फोर्सेस. ठीक है. अब इसमें एक चीज़ और या कंडीशन और आ जाती है. व्हेन यू मिक्स दीज टू कंपोनेंट्स, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एज वेल एज द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन फॉर द कॉम्पोजिशन इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू. जैसे आपने भाई में करा था ना, पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी. तो ये आपका जो वेपर प्रेशर बेसिकली सोल्यूशन की वजह से होता था, पार्शियल वेपर प्रेशर, सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो टोटल होता था, और आपके पास जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स होते थे, वो ये सब जो है जब आप इन्हें मिक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उनकी वैल्यू लेस निकलेगी कंपैरिजन टू राउल्स लॉ की वैल्यू से. तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी. ठीक है. अब इसमें कौन कौन आ सकता है, जैसे वाटर और HCl है, या वाटर नाइट्रिक एसिड है, आप ले लीजिए. ठीक है. उन सब का होता है. तो बेसिकली आपका ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आपका लेस वैल्यू आ रही है. ठीक है. आई एम शोइंग यू द ग्राफ. जस्ट सी द वैल्यूज़ दैट इज़ कमिंग लोअर्ड. जो एक्चुअली राउल्स लॉ की वैल्यू है, उससे क्या हो रहा है, नीचे गिर के आ रही है वैल्यू, है ना. यही तो हमने बताया था. तो ये आपकी कंडीशन है जब आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं. देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू मर्ज, कि देखो इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है. जब वॉल्यूम मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम की नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही हैं. दीज वैल्यूज़ आर देयर, है ना. तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन पॉइंट, कि हमने जो जो अपना पीछे देखा है वो उसी चीज़ को हम यहाँ पे भी देख रहे हैं. देखो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का. तो उसमें थोड़ा सा ये होता है कि जब आप उस केसेस में दोनों को मिक्स करते हैं तो वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, ड्यू टू विच देर इज़ escape tendency of the liquid of the either of the liquid molecules become less. Therefore the vapor pressure of the resulting solution is less than that of pure components, and the boiling points of the solution is increases. So there are the points which you have to keep it. This is the case of chloroform and acetone when you are mixing them, because they possess what hydrogen bondings is been there. So the liquid has a tendency to, liquid molecules becomes less because they escaped out. क्योंकि क्लोरोफॉर्म भी तुम्हें मालूम है ईजिली इवेपोरेट हो जाता है, और एसीटोन की भी यही कंडीशन है. तो दे वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स लेस देन द प्योर कॉम्पोनेंट्स. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट जो है साइड दैट सोल्यूशन इज बीन इंक्रीज. दिस थिंग यू हैव टू keep it in mind. Now we have covered up ideals, non-ideal solutions, the Raoult's laws we have done over here.